Good morning, students. Myself Pankaj Purushottam, and I would like to request you that you must visit our site at YouTube. The name of the site is Success Point Gaurav and Pankaj Purushottam. I, along with my friend Gaurav Singh, who has a mastery in chemistry and other science subjects, will teach you the chapters which are important for the upcoming examination. As you know that the tentative date of the examination has been given. It falls on 15th February. This is why it is very important for everyone to go through all the chapters which are important and for their proper revision. So, I along with Mr. Gaurav Singh is here to help you out, and today I will teach you a poem, explain you a poem which is written over the board, The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. It is of class 10 CBSE, and I will also give you the explanations of class 12 CBSE as well as Bihar Board. So regularly watch our channel and subscribe them. Ogden Nash is known for his humorous poems. He has composed the poem The Tale of Custard the Dragon with a message that the insignificant thing, the things which are known as unimportant thing, the irrelevant, sometimes true, sometimes prove that they play important role in their lives and the lives of the others also. And the things which do not tell anything about itself is not meant that it is worthless and unimportant. Sometimes they prove that they are very worthful and very important for everyone. So this is I will explain you the poem in Hindi also so that it could reach to you easily. आप सही अच्छे से समझ सकें इसको. तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको कंपोज किया है अमेरिकन पोएट ऑगडन नैश ने, और ये अपने ह्यूमरस पोइट्री के लिए जाने जाते हैं. और इसकी जो थीम है वो थीम ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा क्रिएचर जो इनसिग्निफिकेंट माना जाता हो, वर्थलेस माना जाता हो, महत्वहीन माना जाता हो, जिसका इम्पोर्टेंस ना हो, वो भी कभी अपने टाइम पर उसको अपनी वर्थ को, अपने महत्व को प्रूव कर देता है. और यही एक मैसेज है इस पोएम का. और इस पोएम में कुछ कैरेक्टर्स हैं, और ये एक पोएम बैलेड फॉर्म में है, बैलेड है. आई होप दैट you would be knowing about ballad. It is a figure of a speech, and in this figure of a speech a poetry is written in a story is written in a poetic form with some theme, some characters, with heroism and music, tragedy, romance and comedy as well. I start the first
stanza. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey house and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon. Belinda is the name of a girl who lived in a little white house. वह एक छोटे से सफ़ेद रंग के मकान में रहती है. एंड ही हैड सम पेट्स. उसने कुछ पालतू जानवरों को पाल रखा है. लिटिल ब्लैक किटन एक छोटी सी बिल्ली के बच्चा है और एक लिटिल ग्रे माउस, छोटा सा ग्रे कलर का माउस होता है. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता भी है और इनके पास एक लाल रंग की गाड़ी भी है, वैगन भी है. एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और यहाँ पर आप एक सरप्राइज के लिए इसके पास एक छोटा सा ड्रैगन भी है. यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मिस स्पेल किया है राइम करने के लिए, एक म्यूजिकल टोन देने के लिए. रियलियो ट्रूलियो यानी रियली एंड ट्रूली, सचमुच एक छोटा सा ड्रैगन भी. Now, the name of the little black kitten was Ink. It is the next stanza. And the little grey mouse, she called him Blink. बेलिंडा ने अपने सभी पेट्स के अलग अलग नाम रखे हैं. किटन इज नोन एज इंक, किटन का नाम इंक है. एंड लिटिल ग्रे माउस जो उसका नाम ब्लिंक. लिटिल येलो डॉग, इसका नाम मस्टर्ड है बिकॉज ऑफ इट्स येलो कलर. बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. लेकिन ये जो ड्रैगन था ये थोड़ा टिमिड था, थोड़ा डरपोक था और इसलिए इसका नाम कस्टर्ड रखा था. In next stanza, the poet has given the features of the dragon. Custard the dragon had big sharp teeth. ले जाइए ऊपर. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Poet Ogden Nash has given the physical feature of the dragon. और इस ड्रैगन के बड़े तीखे दांत थे. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर के ऊपर कुछ स्पाइक्स, कांटेदार कांटेनुमा चीज़ें निकली थी, नुकीली चीज़ें थीं. और अंडरनीथ मीन्स बीनीथ, बिलो ऑफ द बॉडी, एट द बेली साइड, एट द बैक, उसमें कुछ धाड़ियाँ बनी थी, स्केल्स थे. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और रियली एंड ट्रूली उसके टोज में जो नाखून थे वो डैगर्स की तरह निकले थे. Now the poet has given the characteristics of the pets and Belinda. Belinda was a brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Belinda was very courageous, and for this a phrase has been used, barrel full of beers. And Ink and Blink chased lions down the stairs. और Ink और Blink इतने करेजियस थे as they present themselves कि वो लायंस को, शेरों को भी सीढ़ियों से पहले ही भगा दिया करते थे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज. मस्टर्ड भी बहुत करेजियस था, बहुत साहसी था
और हमेशा फ्यूरियस हुआ करता था, वो गुस्से में रहा करता था। हियर इज द वर्ड रेज। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। लेकिन ये कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो इस तरह से करेजियस, इतने के फ्यूरियस, स्ट्रेंथफुल नहीं था। वो हमेशा एक सुरक्षित जगह अपनी केज में खोजता था जहाँ जाकर वो छिप जाया करता था। और Belinda tickled him. Now we come to the next stanza. She tickled him unmerciful. Ink, blink, and mustard, they rudely called them Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. और बेलिंडा उसके इस टिमिडनेस से, उसके इस कमजोरी की वजह से, उसके डरपोक होने की वजह से हमेशा छेड़ा करती थी। और ब्लिंक और मस्टर्ड उसको बहुत रूडली पर्सिवल कहकर पुकारा करते थे। ये एक कमेंट है उसके अपोजिट कैरेक्टर के ऊपर। पर्सिवल as the warriors in some European empire, इसको पर्सिवाल कहते हैं। ग्लैडिएटर जो योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, दे आर नोन एज पर्सिवाल। ड्रैगन के इस टिमिडनेस से उसको छेड़ने के लिए, टिकल करने के लिए जितने पेट्स थे उसको पर्सिवाल, यानी एक ऐसा आदमी जो काफ़ी साहसी है, करेजियस है, ग्लैडिएटर है, तलवारबाज है, वॉरियर है, युद्ध करने वाला है, ऐसा कहकर पुकारा करते थे, जो कि जस्ट कैरेक्टर से अपोजिट था। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard Rolly asked his age, when Custard cried for a nice safe kiss. तो बेलिंडा इस पर इतनी जोर से हंसती थी कि पूरा घर हिल जाया करता था उस ड्रैगन के टिमिडनेस के ऊपर, उसके पर्सिवाल कहकर छेड़ने के ऊपर। एंड ब्लिंक सेड विक, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और ब्लिंक जो चूहा था वो भी इसकी बात को सुनकर हंसता था। इसमें एक साउंड वर्ड है विक, यानी उसकी चूहे की आवाज़। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो हैं वो ड्रैगन की उम्र पूछते थे कि भाई तुम्हारी कितनी उम्र है जो इतने डरे हुए रहते हो। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब वो एक सुरक्षित जगह केज में वापस अपने छिपने की जगह जाने की बात कहता था। बट हियर द स्टोरी changes, and this is the feature of Ogden Nash, that he gives a sudden change in the story। और अचानक से एक कहानी में यहाँ पर परिवर्तन होता है। to prove his theme, to give the message, suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled and they all looked around. "Me watch," cried Ink, and "Oh," cried Belinda, for there was a parrot climbing in the window। अचानक से एक नेस्टी साउंड, एक खराब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है और मस्टर्ड गुड़ाता है, मस्टर्ड जो डॉग है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और इस साउंड पर सभी चारों ओर देखना शुरू करते हैं। और उन्होंने जो देखा उस
सीन को देखकर सभी के हाथ के तोते उड़ गए। मिवाच क्राइड इंक, उसको देखकर इंक भी बोलने लगा, चीखने लगा। ओफ क्राइड बेलिंडा, उस सीन को देखकर बेलिंडा जैसी करेजियस, पावरफुल, स्ट्रेंथफुल लड़की जो अपने को प्रेजेंट करती थी, उसके भी होश उड़ गए। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि उनकी खिड़कियों से होकर एक पायरेट, समुद्री डाकू अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो इस पोएम का एक फीचर ये भी है ख़ास तौर से कि इसको म्यूज़िकल बनाया गया है, राइम बनाया गया है और वर्ड्स को मिसस्पेल किया है इसी वजह से। तो यह एक पोएटिक लाइसेंस है पोएट्स के लिए कि वो राइम करने के लिए वर्ड्स को मिसस्पेल भी कर सकते हैं। तो हियर इज द वर्ड विंडा मीन्स विंडो। In next stanza, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. उस पैरेट के हाथ में, दोनों हाथों में पिस्टल्स थे, उसने दोनों हाथों में पिस्टल्स थाम रखे थे। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और दांतों में एक चमकती हुई तलवार थी। Cutlass, here is the word came, cutlass. Sword or a kind of sharp weapon. His beard was black, one leg was wood. जैसे कि हम कॉमिक्स वगैरह में देखते हैं पायरेट्स के बारे में जो फीचर दिखाई पड़ता है, उसकी काली बढ़ी हुई दाढ़ी थी, एक पैर लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और उसको देखकर लगता था कि पायरेट के जो मंसूबे हैं वो अच्छे नहीं। और बढ़ा दीजिए इसको। बेलिंडा felt and she cried help help. बेलिंडा became panicked, उसको देखकर काफ़ी घबरा गई, पीली पड़ गई। पेल मीन्स टू बिकम वीक, कमज़ोर पड़ जाना। Clashed his tail, ink trickled down to the bottom of the household, but mustard fled with a terrified elf. Before this line is, और जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, जो फ्यूरियस था, जो ये कहा करता था कि वो लायंस को भी भगा दिया करता है, लायंस भी उससे डरते हैं, उस डॉग से, यहाँ पर उसकी भी घिघी बन गई और वो भी चीखता हुआ आतंकित भाग खड़ा हुआ। एल्प इज द साउंड वर्ड, एल्प टू शाउट, चीखना। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक वो भी चीखती हुई, वो जो किटन थी वो भी नीचे, घर के नीचे भाग खड़ी हुई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और ये जो छोटा चूहा था वो बड़ी प्लान के साथ, स्ट्रैटेजिकली, बड़ी सोच विचार करके वो अपनी बिल में जाकर छुप गया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन आवर ऑफ क्राइसिस, जहाँ पर उस करेज को दिखाने की ज़रूरत थी, जहाँ पर अपने को प्रेजेंट करने की ज़रूरत थी, जिसका सामना करने का ज़रूरत था,
वहाँ पर ये सभी के सभी भाग खड़े हुए थे। And only one creature was left there. It was Custard. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a war. लेकिन कस्टर्ड वहाँ से भागा नहीं। वह अपनी पूंछ जो जैसे एक लोहे की जंजीर की जैसी थी, उस फ्लोर पर पटकता रहा, उस पत्थर के बने हुए फ्लोर पर, और उसे आवाज़ आती रही। यहाँ जो हमने जो वर्ड्स पढ़ा, विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वेरम, दीज आर द साउंड वर्ड्स, जो उसके पूछ पटकने की आवाज़ थी। He went at the pirate like a robin at a worm. और किसी रॉबिन बर्ड की तरह, जब यह जो रॉबिन बर्ड है चिड़िया, किसी वॉर्म को देख लेती है, किसी कीड़े को देखकर जिस तरह से झपट्टा मारती है, वैसे ही उस ड्रैगन ने उस पायरेट के ऊपर झपट्टा मारा था। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. उस फ्यूरियस कस्टर्ड को देख करके, उस ड्रैगन को देख करके, वह जो पायरेट था, वह जो समुद्री डाकू था जो उस घर में घुसा था, वो भी अवाक रह गया, गैप्ड, सरप्राइज्ड हो गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपने पॉकेट से एक शराब की शीशी निकाली और उसको पूरा गटक गया। He fired 2 bullets, but they didn't hit it. उस पायरेट ने 2 गोलियां चलाई, उसको शूट करना चाहा, लेकिन fortunately it missed the dragon. And Custard gobbled him every bit. And there was a chance for the Custard, और उस कस्टर्ड ने एक ही झटके में उस पूरे के पूरे पायरेट को वो जिंदा निगल गया। In this way, the pirate was killed. तो ये कहानी है, इस तरह से जो कस्टर्ड जो टिमिड था, वो घबराया हुआ रहता था, हमेशा सेफ केज मांगता था, वो छुपने की जगह जहाँ अपने आप को कभी ब्रेव प्रदर्शित नहीं करता था बाकी लोगों की तरह, उसने अपने आप को प्रूव किया इस क्राइसिस में। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned of his pirate victim. Belinda ने गले से लगा लिया है, वर्ड embraced means to hug. Mustard licked him, मास्टर उसको चाटने लगा प्यार से। No one mourned for his pirate victim, अब उस पायरेट के मरने से किसी को कोई शोक नहीं था, दुख नहीं था। Ink and blink in glee did Garrett, इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करने लगे गैरेट। To move in a circle, to dance around. Around the dragon that ate the parrot, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने उस पैरट को खा गया था। But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. लेकिन लोगों की आदत गई नहीं थी। यहाँ भी बहुत ब्यूटीफुली ऑगडन ने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा है, जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्चुअली यू कैन टेल दिस पोएम एज ए बैलेड, ये
पैराबल ऑल्सो, फैबल ऑल्सो, जिसमें कैरेक्टर्स तो एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर ह्यूमन बींग्स की तरह होता है। सभी अपने आप को शर्मिंदित या लज्जित होने की जगह अपने आप को एक जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। शर्माए हुए मस्टर्ड ने कहा कि मैं तो इससे दुगना साहस दिखा सकता था अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इसी तरह के बड़े बोल इंक और ब्लिंक दोनों ने बोले। यहाँ पर एक वर्ड है फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड। We would have been 3 times as brave, we think. And Custer said, I quite agree that everybody is braver than me. और फिर बाकी लोगों ने कहना शुरू किया कि हम तो तुम्हारे से 3 गुना साहस दिखाते। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तुमसे 3 गुना ज़्यादा साहसी हैं। लेकिन सभी अपना अपना प्ली देने लगे कि क्यों भाग खड़े हुए। एंड कस्टर्ड, which was a true brave creature and very humble and polite, he said, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. उसने बड़ी विनम्रता से लोगों से कहा कि मैं सचमुच सबसे ये सहमत हूँ कि आप सभी मुझसे कहीं ज़्यादा साहसी हैं। And again the first stanza has been repeated here. It is a refrain. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dog. बेलिंडा अभी भी उस छोटे सफ़ेद से घर में रहती है और उसके पास वही एक छोटा ब्लैक किटन और एक छोटा ग्रे माउस, और उसके पास फिर वही एक येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, उसकी वही लाल गाड़ी भी है, और सचमुच रियली एंड ट्रूली उसके पास एक ड्रैगन भी है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर। यहाँ पर ये दोनों स्टेंजा को देने का मतलब ये है कि उनके कंट्रास्ट, उसको कंट्रास्ट करना, उनके कैरेक्टर और उनके रियलिटी का कंट्रास्ट बताता है। सो स्टूडेंट्स, this is the concluding point of the poem. I think that you would have all understood well. यहाँ पर दोनों फीचर्स, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक का जो कंट्रास्ट है वो बताता है कि अपने ब्रेव वही है जो अपने वक्त पर अपनी क्षमता को साबित कर सके। जुबानी जमा खर्च करना ब्रेवरी नहीं है, बल्कि अपने एबिलिटी, अपनी पोटेंशियलिटी को साबित करना होता है। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. And this is the end of the poem, A Tale of Custard, the Dragon. और इस पोएम से आप लोगों को एक डिटेल जानकारी मिली होगी। एक पोएम इम्पॉर्टेंट भी है, एक लंबा सा पोएम है, और आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसके समराइजेशन को पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्पेशली मैं आपको बता दूं कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होता है, और थीम बेस्ड
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वॉच आवर चैनल सक्सेस पॉइंट बाय गौरव एंड पंकज पुरुषोत्तम, and definitely please do not forget to subscribe this channel.